Hello everyone. So today we will be doing revision for the topic obstetric shock, and this topic is also coming under obstetrical emergencies, right? So let's start with the revision. First of all comes the definition for shock, because we are doing obstetric shock, ठीक है? So we'll be like discussing about the factors during labor or during childbirth which can lead to shock. But before that, we all should know what actually shock is, right? So it is a condition resulting from inability of the circulatory system to provide the tissue requirements from oxygen and nutrients to remove metabolites, right? So any condition which results in the you can say inability of the circulatory system, in which the circulatory system won't be able to provide required oxygen to the tissues and required amount of nutrients to the tissues, and in case if the circulatory system is also not able to remove the metabolites, right? So that particular condition will result into shock. So next we will be discussing about the types and causes of shock, ठीक है? So इसमें हम different types of shocks को study करेंगे, and उन particular shocks के causes क्या हैं, that we are going to discuss under this topic, right? So first of all comes the hemorrhagic shock, ठीक है? As we all know, hemorrhagic shock, that is due to excessive blood loss, and that because we are doing the topic obstetric, राइट, ऑब्स्टेट्रिक शॉक इट इज़. सो उसके लिए हम उन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे विच आर रिलेटेड टू द ऑब्स्टेट्रिक पार्ट्स, ठीक है? जैसे कि एक्सेसिव ब्लड लॉस कैन अकर, ठीक है, while there is in bleeding in the early pregnancy, ठीक है? So that can be a obstetric cause of hemorrhagic shock, right? So bleeding in early pregnancy, और bleeding in early pregnancy किस वजह से होती है? Whether there is like abortion or there is ectopic pregnancy or HMOL, ठीक है? So that all will lead to bleeding in early pregnancy. Then next comes antepartum hemorrhage, ठीक है? Antepartum hemorrhage होती है, it is the amount of bleeding that occurs following 28th week of gestation, ठीक है? So and this antepartum hemorrhage which occurs due to placenta previa, or it can occur due to abruptio placenta. Then next comes postpartum hemorrhage, that is also another cause, obstetric cause of hemorrhagic shock. postpartum hemorrhage हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है रिवीजन सेशन में भी, ठीक है? तो आपको अच्छे से पता है postpartum hemorrhage के बारे में. एंड along with these like inversion of uterus है या rupture of uterus है, they will also lead to hemorrhagic shock, right? Then next comes second type of shock, that is neurogenic shock, ठीक है? So neurogenic shock may be due to obstetrical causes, इसके ये सब आ सकते हैं which can lead to neurogenic shock, that is disturbed ectopic pregnancy. Then concealed accidental hemorrhage. concealed का मतलब क्या है? There is injury to कंसील्ड एक्सीडेंटल हैमरेज का मतलब क्या है? देयर विल बी इंजरी टू द यूट्रस, ठीक है? एंड जो ब्लीडिंग है दैट इज नॉट रिवील्ड इन नेचर, दैट इज कंसील्ड इन नेचर, सो दैट विल लीड टू न्यूरोजेनिक शॉक. देन फोर्सेप्स और ब्रीच एक्सट्रैक्शन बिफोर फुल सर्वाइकल डायलेटेशन, ठीक है? फोर्सेप्स और ब्रीच एक्सट्रैक्शन जो है हमेशा हम तभी करते हैं जब सर्विक्स फुली डायलेट हो जाता है. बट इफ़ वी आर अप्लाइंग, या किसी ने सर्विक्स पूरा डायलेट होने से पहले अप्लाई कर दी है फोर्सेप्स या ब्रीच को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश किया, सो दैट विल अल्टीमेटली कैन कॉज न्यूरोजेनिक शॉक. देन नेक्स्ट कम्स रफ इंटरनल वर्जन, ठीक है? इंटरनल वर्जन हमने पढ़ा है ना मैनिपुलेशन में. सो इंटरनल वर्जन में जो टेक्निक है या स्किल्स हैं दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, ठीक है? तो अगर किसी ने इंटरनल वर्जन का प्रोसीजर जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो दैट कैन कॉज न्यूरोजेनिक शॉक. देन है क्रीट्स मेथड. क्रीट्स मेथड इज डन टू एक्सपेल आउट द प्लेसेंटा, ठीक है? सो दैट कैन ऑल्सो कॉज न्यूरोजेनिक शॉक. देन है रप्चर यूट्रस, ठीक है? ना रप्चर यूट्रस जो है दैट कैन कॉज दिस पर्टिकुलर शॉक. देन एक्यूट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस. देन लास्ट वन इज रैपिड इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्राइन कंटेंट एज इन प्रेसिपिटेट लेबर. प्रेसिपिटेट लेबर में क्या होता है कि जो लेबर की ड्यूरेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, दैट विल बी less than 3 hours, right? And if it is there, then that can cause neurogenic shock. So these are the factors, obstetrical causes which can cause neurogenic shock, and which is a type of shock, right? Then next comes third one is cardiogenic shock, ठीक है? Cardiogenic shock is ineffective contraction of the cardiac muscle, and as we all know, ineffective contraction cardiac muscles की कब होती है? Whether there is myocardial infarction or there is heart failure, right? देन नेक्स्ट कम्स एंडोटॉक्सिक शॉक. एंडोटॉक्सिक शॉक जो होता है इसको हम सेप्टिक शॉक भी बोलते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली ड्यू टू रिलीज ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ टॉक्सिन, ठीक है?
देन देयर विल बी जर्नलाइज वेस्कुलर डिस्टर्बेंस, ठीक है. देयर विल बी रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, ठीक है. किस वजह से होंगे वो टॉक्सिन रिलीज? ड्यू टू जर्नलाइज वेस्कुलर डिस्टर्बेंस, एंड दिस टाइप ऑफ शॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्टिक शॉक. Then next comes anaphylactic shock. Anaphylactic shock हमें पता है that is caused by sensitivity to any kind of drug, ठीक है. So that can cause anaphylactic shock, right? Then comes other causes which can lead to shock, obstetric shock, ठीक है. सबसे पहले है एम्बोलिज्म जो है एयर एम्बोलिज्म या थ्रोम्बस भी हो सकता है, बट कॉमनली इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म देखा गया है, जो कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है डिटेल में, ठीक है. देन कम्स एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है. एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस में आपका आ जाता है मेंडेलसन सिंड्रोम, ठीक है. मेंडेलसन सिंड्रोम का जो दूसरा नाम होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, ठीक है. इसमें क्या होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग द लाइक प्रोसेस ऑफ लेबर, राइट? or and it is a like complication of anesthesia only, and what happens in this is there is aspiration of the like of the blood, or it can be like gastric juice के भी aspiration हो सकता है, and which will cause pneumonitis, and ultimately it will lead to a shock like condition, right? Then next comes the shock may be caused by more than one factors, ठीक है. लाइक इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, या डिस्टर्ब्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या रप्चर्ड यूट्रस है, ठीक है. तो एक फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स भी अगर प्रेजेंट होंगे इनमें से, तो दैट कैन अल्टीमेटली कॉज ऑब्स्टेट्रिक शॉक. देन कम्स क्लासिकल क्लिनिकल पिक्चर ऑफ शॉक. जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है. तो सबके साइन एंड सिम्टम्स भी डिफरेंट आते हैं, ठीक है. लेकिन अभी क्लासिकल अगर हम पूछें तो कॉमनली ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये अपीयर हो सकते हैं इन केस ऑफ शॉक. दैट इज़ लो ब्लड प्रेशर, देन रैपिड वीक थ्रेडी पल्स, देन पैलर, देन कोल्ड कामी स्वेट, कोल्ड कामी स्किन हम इसे बोल सकते हैं. देन साइनोसिस ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, जिसे हम पेरिफेरल साइनोसिस बोलते हैं. देन एयर हंगर विल बी देयर, देन डिमनेस ऑफ द विजन, रेस्टलेसनेस एंड ओलिगोयूरिया और एनोयूरिया, ठीक है. ओलिगोयूरिया क्या होता है? व्हेन द यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 ml per hour, और सॉरी नॉट पर आवर पर डे, ठीक है. और एनोयूरिया 400 ml हम कंसिडर करते हैं. ओलिगोयूरिया में जो अमाउंट ऑफ दिस है यूरिन है दैट इज़ लेस देन 400 ml पर डे. और एनोयूरिया का मतलब क्या है? कंप्लीट सीजेशन ऑफ द यूरिन, ठीक है. जो यूरिन है वो पास ही नहीं हो पाएगा पेशेंट से, ठीक है. सो दैट आर दी लाइक क्लासिकल क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द शॉक. Then next comes diagnosis, ठीक है. High index of suspicion and physical signs of inadequate perfusion and oxygenation are the basis of initiating prompt treatment, ठीक है. किससे हमें पता चलेगा? inadequate perfusion से हमें पता चलेगा, पेरिफेरल साइनोसिस जैसा होगा, ठीक है. और ऑक्सीजनेशन भी जो है वो inadequate होगी, हमें पता चलेगा. पेशेंट की लेबर्ड ब्रीदिंग होगी तो उससे हमें पता चल सकता है, राइट. सो इनिशियल मैनेजमेंट डज नॉट रिलाई ऑन नॉलेज ऑफ द अंडरलाइंग cause, and there are no laboratory tests for shock, as we all know, and we have already discussed this in the class that there is no specific lab test for the shock. लेकिन हम क्या करेंगे? बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमने पूरा अरेंजमेंट करके रखना है, ठीक है. BT स्टैंड्स फॉर ब्लीडिंग टाइम, CT इज क्लॉटिंग टाइम, ठीक है. पैक सेल वॉल्यूम है, तो ये सभी टेस्ट जो है वो हमने करवाने हैं पेशेंट के. देन ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग एंड ग्रुपिंग, देन फास्टिंग, ब्लड शुगर, रूटीन यूरिन एनालिसिस, ये सारे टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं रूटीन में. देन कम्स हेमरेजिक शॉक. अब हम क्या करेंगे? कॉजेज हमने पढ़ लिए हैं, क्लिनिकल पिक्चर हमने देख लिया है कि कॉमनली ये साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो अराइज होते हैं. नाउ विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द शॉक. सबसे पहले हेमरेजिक शॉक है, अभी हमने डिस्कस किया. इट विल बी ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, और कॉजेज आपको बताए हैं. इट कैन बी ड्यू टू APH, इट कैन बी ड्यू टू PPH, इट कैन बी ड्यू टू HMOL और इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस और रप्चर ऑफ द यूट्रस, ठीक है. तो मैनेजमेंट इसकी अभी हम स्टार्ट करेंगे. सो मैनेजमेंट में सबसे पहले आया आपका अर्जेंट इंटरफियरेंस इज इंडिकेटेड एज फॉलोज. डिटेक्ट द कॉज एंड अरेस्ट द हैमरेज. वी विल फाइंड आउट द कॉज ऑफ द हैमरेज और उसको हम फिर अरेस्ट करने की, रोकने की कोशिश करेंगे. देन एस्टैब्लिश है पेटेंट एयरवे एंड गिव ऑक्सीजन बाय मास्क और एंडोट्रिकियल ट्यूब, ठीक है. तो ऑक्सीजन मास्क से या ET ट्यूब से हम एयरवे जो है एस्टैब्लिश करेंगे और पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे. देन पेशेंट की लेग्स हमने जो है वो एलिवेट करनी है. वाई वी विल डू दैट? टू इंक्रीज द वीनस रिटर्न, राइट. देन 2 or more इंटरवीनस वेज आर एस्टैब्लिश फॉर ब्लड फ्लूइड एंड ड्रग इन्फ्यूजन, क्योंकि हमें हैवी अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है हमें वो रिप्लेस करने पड़ेंगे इसमें. तो हमने 2 लार्ज बोर कैनुला जो है वो प्लेस करने हैं, राइट. देन
हाँ, सपोज इफ द वेन्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, अ वीनस कट डाउन और इंट्राफिमोरल कैनुलेशन इज डन। अगर सपोज पेरिफेरल वेन्स आपको नहीं मिल रही हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, इंट्राफिमोरल कैनुलाइजेशन कैन बी डन टू रिप्लेस द blood and body fluids and for drug infusions as well, right? देन नेक्स्ट हमारा इसमें आता है हेमरेजिक शॉक की मैनेजमेंट में, दैट इज रीस्टोरेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को हम कैसे करेंगे रीस्टोर, क्रॉस मैच ब्लड जो होगा वो हमने इन्फ्यूज़ करना है। ठीक है, एंड इफ दैट पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप इज़ नॉट अवेलेबल देन वी कैन गिव ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव क्यों दे सकते हैं हम, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, राइट। देन क्रिस्टोलॉइड सोल्यूशन, क्रिस्टोलॉइड सोल्यूशन में हम पेशेंट को इस केस में देते हैं रिंगर लैक्टेट या फिर नॉर्मल सलाइन और या फिर ग्लूकोज 5%। ठीक है, ये सारे हम क्रिस्टोलॉइड सोल्यूशंस हैं, ये हम हेमरेजिक शॉक के केस में इन्फ्यूज़ करते हैं पेशेंट को, राइट। एंड कोलॉइड सोल्यूशन जैसे कि डेक्स्ट्रॉन होता है, डेक्स्ट्रॉन 40 और 70, प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेमरेजिक शॉक। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया है इसमें, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है क्रिस्टोलॉइड सोल्यूशन एंड कोलॉइड जैसे कि डेक्स्ट्रॉन 40 और 70 और FFP सॉरी दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या फिर प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन में हम जो है पेशेंट को इन्फ्यूज़ करते हैं, राइट, एडमिनिस्टर करेंगे। देन नेक्स्ट कम्स रिकम्बिनेंट एक्टिवेटेड फैक्टर 7A। ठीक है, क्योंकि हेमरेजिक शॉक है तो हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें हम ये फैक्टर 7A जो है रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेटेड फैक्टर 7A जो है रिसर्च स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि इसको देने के लिए इफेक्टिवनेस होती है इन मैनेजिंग हेमरेजिक शॉक। ठीक है, सो इट प्रमोट्स क्लॉट फॉर्मेशन थ्रू दो इट्स एक्शन एट मेनी स्टेजेस इन क्लॉटिंग कैस्केड, it forms a complex with tissue factor, a key initiator in hemostasis. ठीक है, it is a key initiator in like controlling or you can say managing bleeding. ठीक है, सो ये वाले जो फैक्टर है रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेटेड फैक्टर 7A, ठीक है, ये हमने जो है वो पेशेंट को देना है, राइट। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ थ्रोम्बिन, एक्टिवेटिंग फैक्टर 5 and 7 एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो इन सब चीज़ों को भी, ये इन सब फैक्टर्स को भी हेल्प करेगा उनकी प्रोडक्शन में। ठीक है, ताकि जो इंजरी की साइट है या ब्लीडिंग की साइट जो है वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो सके। देन आएगा ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में वी कैन गिव एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स में हम पेशेंट को 10 to 15 mg मॉर्फिन IV देते हैं इफ़ देयर इज पेन एंड टिश्यू डैमेज और इरिटेबिलिटी। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम इसमें देते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन को इस केस में देने का मेन हमारा जो मोटिव होता है दैट इज़ टू डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इसमें डिक्रीज करने के लिए हम जो है वो दे सकते हैं, राइट। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होती है, राइट। देन सोडियम बाइकार्बोनेट इज गिवन 100 मिली इक्विवेलेंट IV देना है इफ़ लाइक देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हम देते ही देते हैं हेमरेजिक शॉक के केस में। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। देन वेसोप्रेसर्स देंगे। वेसोप्रेसर का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है और रीनल परफ्यूजन को मेंटेन करना है। देन वी कैन गो फॉर डोपामिन। डोपामिन जो है दैट इज़ लाइक कार्डियक स्टिमुलेंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो 2.5 मिलीग्राम पर kg पर मिनट IV जो है दे सकते हैं हम डोपामिन इसके अंदर। ठीक है, इससे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। देन बीटा एडिनर्जिक स्टिमुलेंट दे सकते हैं हम। ठीक है, बीटा एडिनर्जिक स्टिमुलेंट जो होंगे दैट ऑल्सो हेल्प्स इन नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो बीटा एडिनर्जिक स्टिमुलेंट दैट कैन बी गिवन। Then है monitoring. What all things we are supposed to monitor when the patient undergoes a hemorrhagic shock which is due to obstetric causes. ठीक है, जैसे कि CVP मॉनिटर करेंगे एंड एज वी ऑल नो नॉर्मल CVP जो होता है दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर ऑफ H2O, राइट। देन पल्स रेट पेशेंट का चेक करना है, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट नॉर्मल 60 ml पर आवर होता है, वो हमने नॉर्मल मेंटेन करना है। देन पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो मॉनिटर करेंगे एंड नॉर्मल पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो होता है दैट इज 16 to 18 टॉर। टॉर क्या होता है, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। देन क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट इन द पैलर। ठीक है, इस सभी चीज़ों को हमने चेक करना है। ठीक है, कि क्या क्या पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आए थे और उनके अंदर कितना क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है जब आपने पूरा मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो पैलर देखना है पेशेंट का सबसाइड हुआ, साइनोसिस, एयर हंगर, स्वेटिंग एंड कॉन्शियसनेस, इन सब चीज़ों को हमने मॉनिटर करना है क्लोजली, राइट।
So here are some of the complications which can lead to this particular kind of hemorrhagic, which can occur due to this particular kind of shock, that is hemorrhagic shock. So there can be acute renal failure and there will be pituitary necrosis. pituitary necrosis को हम शीहान सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी. शीहान सिंड्रोम्स जो है मैंने क्लास में भी बताया था आपको, ये जब हमने लेक्चर लिया था, है ना. शीहान सिंड्रोम में क्या होता है, देयर विल बी लाइक परमानेंट डैमेज यू कैन से टू पिट्यूटरी ग्लैंड अकर्स एंड दिस बेसिकली अकर ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है. देन डीआईसी हम पढ़ चुके हैं पहले, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमरेजिक शॉक, ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स हेमरेजिक शॉक के बाद, दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, विच कैन अकर ड्यू टू इवन इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट एंड शी इज हैविंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन और heart complications, ठीक है. So the failure of heart to provide adequate output leads to tissue under perfusion, ठीक है. Then back pressure on lungs leads to pulmonary edema. Cardiogenic shock है तो it will ultimately cause pulmonary edema and pregnancy puts progressive strain on cardiac function as pregnancy progresses, the peak being 32 to 34 weeks. हमें सबको पता है कि प्रेगनेंसी जब में क्या होता है, दे विल बी इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है. सो अगर पहले से ही कोई पेशेंट को कार्डियक लीजन है या कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, तो जो कॉम्प्लिकेशन राइज हो सकती हैं उसको, दैट इज़ लाइक आप कह सकते हो कि 32 to 34 वीक्स में ज़्यादा चांसेस हैं उसको कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो राइज हो सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में जाने के, ठीक है. देन कार्डिक रिलेटेड डेथ आर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी एंड कॉमनर देन द डायरेक्ट लीडिंग कॉज ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ये प्रेगनेंसी में अगर किसी की डेथ होती है कार्डियक रिलेटेड, राइट. देन मैनेजमेंट है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कार्डिक लीजन. अगर कार्डिक लीजन है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाना चाहिए और सर्जिकल करेक्शन हो जानी चाहिए प्रेगनेंसी होने से पहले. लाइक इफ द वुमन इज हैविंग कार्डिक लीजन तो वी शुड एडवाइस हर टू पोस्टपोन हर प्रेगनेंसी, ठीक है. और अवॉइडिंग प्रेगनेंसी और MTP एट 6 to 8 वीक्स इफ कार्डियक कंडीशन इज नॉट अंडर कंट्रोल. और अगर उसकी कार्डियक कंडीशन स्टेबल नहीं है एंड इफ शी इज़ प्रेगनेंट, ठीक है, तो MTP जो हम उसका करेंगे, ठीक है, तो दैट शुड बी लाइक डन ओनली इफ द कंडीशन इज अंडर कंट्रोल, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे, ठीक है. और प्रेगनेंसी भी हम अवॉइड करेंगे अगर उसे कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है तो, जैसे कि मैंने पहले बताया. देन मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन सच पेशेंट्स बाय द एक्सपर्ट टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है. तो अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है ऐसे पेशेंट की तो उसको रेगुलर फॉलोअप के लिए जाना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास और प्लस कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है. बाकी शॉक की जो ट्रीटमेंट होगी दैट विल बी सिमिलर जो हमने हेमरेजिक शॉक के लिए पढ़ी है, ठीक है. एंड बाकी फर्दर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कार्डियक लीजन, ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स एनाफाइलेक्टिक शॉक. एनाफाइलेक्टिक शॉक बताया आपको, दैट अकर्स ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, एंड इट मेनली अकर्स ड्यू टू लाइक ड्रग्स, सेंसिटिविटी टू सर्टेन काइंड्स ऑफ ड्रग, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है. या फिर किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है और उसको बी पॉजिटिव इन्फ्यूज कर दिया है गलती से, ठीक है, तो भी एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है पेशेंट को, ठीक है. सो इसमें मैनेजमेंट हम देखेंगे. बेसिक शॉक मैनेजमेंट है इसमें ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. ABC के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, दैट इज़ नाउ कॉल्ड एज CAB, दैट इज सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग. तो आपने उस हिसाब से उसको कवर अप करना है, ठीक है. देन प्राइमरी मैनेजमेंट इसमें आ जाती है आपकी, स्टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सस्पेक्टेड सब्सटेंस एंड कॉल फॉर हेल्प. सपोज आप पेशेंट को कोई ड्रग इन्फ्यूज़ किया है आपने, ठीक है, और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि अगले 24 आवर्स में वो ड्रग जो है पेशेंट को देते रहना है, ठीक है. तो अगर पेशेंट उससे एलर्जी या एनाफाइलेक्टिक शॉक डेवलप कर लेता है तो हमने उस ड्रग को देना बंद कर देना है इमीडिएटली. देन वी विल गिव एड्रेनालिन. आपको पता है एनाफाइलेक्टिक शॉक को मैनेज करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो बेस्ट ड्रग है वो एड्रेनालिन हम देते हैं. और रेशो कितनी यूज़ करते हैं, ड्रग की डोज कितनी है, 1:1000, ठीक है. सो 1 ml का इंजेक्शन जो है डायल्यूटेड एड्रेनालिन का आपने प्रिपेयर करना है. देन इंट्राट्रेकियल इंट्यूबेशन इज़ डन, ठीक है. एंड देन सुपाइन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो है वो पेशेंट को देनी है विद रेज्ड लेग्स, ठीक है. दैट इंक्रीजेज द वीनस रिटर्न. तो इसमें पेशेंट की लेग्स जो है वो आप रेज करोगे और हेड एंड साइड जो है वो नीचे कर सकते हो आप, या सुपाइन पोजीशन में भी पेशेंट को लेटा के उसकी टांगे सिर्फ ऊपर कर सकते हो, या फिर हेड साइड डाउन एंड लेग्स जो है वो अप. दैट इज कंसिडर्ड एज कौन सी पोजीशन होती है वो, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन. तो वो देनी है, उससे वीनस रिटर्न जो है वो इम्प्रूव हो जाता है. देन वेसोप्रेसर ड्रग्स हम देंगे ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट का इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है. देन उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है
एंड रैपिड इन्फ्यूजन फॉर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंडर, ठीक है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंड करने के लिए वी विल गिव क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, यानी कि हम RL दे सकते हैं, डेक्सट्रोज दे D5 दे सकते हैं, ठीक है। एंड D5 के साथ साथ वी कैन ऑल्सो गिव नॉर्मल सलाइन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। देन आ गया सेकेंडरी मैनेजमेंट क्या आएगी। एट्रोपिन में बी गिवन इफ सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया, इफ द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, तो हम उसको एट्रोपिन देंगे। देन इफ ब्रोंकोस्पेजम इज देयर देन वी विल नेबुलाइज द पेशेंट, राइट, नेबुलाइज द पेशेंट। एंड IV हम उसको अमाइनोफाइलिन और डेरिफाइलिन दे सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं ये, ठीक है, तो ये हम पेशेंट को दे सकते हैं। और सैल्ब्यूटामोल के साथ भी हम उसको नेबुलाइज कर सकते हैं पेशेंट को, राइट। देन एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है, एंटीहिस्टामिन्स आप देंगे, IV देने हैं क्लोरफिनारामिन, ठीक है, IV दिया जाता है क्लोरफिनारामिन का इंजेक्शन जो है, और दैट इज़ द एंटीहिस्टामिन। तो जिस भी चीज़ से एलर्जी हुई है उसका एक्शन को काउंटर एक्ट करेगा ये, ठीक है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी गिवन लाइक एफकॉर्लिन दे सकते हैं, IV ड्रिप के अंदर देंगे, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एफकॉर्लिन इंट्रावीनसली। Then we can also go for dexamethasone while we are considering for secondary management. Then referral to the critical care unit, ठीक है, CCU में पेशेंट को फिर हम रेफर करेंगे if the patient is having this condition, right. Sorry. Then next comes न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक के अभी हमने कॉजेज डिस्कस करे थे डिटेल में, ठीक है, तो हमने इसकी मैनेजमेंट जो है वो हमने डिस्कस करनी है। सो इनिशियल मैनेजमेंट रिक्वायर्स ABC, फ्लूइड रिसेसिटेशन, वेसोप्रेसर ड्रग्स टू काउंटरैक्ट द वेसो डायलेशन हुआ तो हमने वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाने के लिए हम वेसो प्रेसर ड्रग्स देंगे, जिससे ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का इंक्रीज हो जाएगा। और इनिशियल मैनेजमेंट हमारी किस पे है, ABC पे, दैट इज एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, और फ्लूइड रिसेसिटेशन पे, राइट। एट्रोपिन में बी नेसेसरी इन हाई लीजन्स एज ब्रेडिकार्डिया में अकर ड्यू टू अनअपोज्ड वेगल एक्टिविटी, ठीक है, तो वेगस एक्टिविटी है, वेगस स्टिमुलेशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, एट्रोपिन जो है वो हम दे सकते हैं अगर पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया एक्सपीरियंस कर रहा है। देन शॉक में अकर ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ एनेस्थीसिया और अनाल्जेसिया फॉर लेबर और डिलीवरी। अभी बताया था आपको एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिससे कि न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप होता है, ठीक है, तो दैट शॉक कैन अकर एट एनी टाइम ऑफ एनेस्थीसिया और अनाल्जेसिया, उसकी किसी भी स्टेज में शॉक डेवलप हो सकता है। शॉक कॉज्ड बाय जनरल एनेस्थीसिया यूजुअली ड्यू टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब एनाफाइलेक्टिक टाइप का होगा अगर जनरल एनेस्थीसिया के टाइम पे पेशेंट ने शॉक डेवलप किया है, राइट। और अगर हाई स्पाइनल ब्लॉक एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया है, ठीक है, देन इट अकर्स व्हेन ओवरडोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, अगर हाई स्पाइनल ब्लॉक दिया है तो उस केस में शॉक पेशेंट तब डेवलप करता है जब लोकल एनेस्थीसिया की जो अपने डोज दी है ड्रग की वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, एपिड्यूरल स्पेस में या फिर सब एरिकनॉइड स्पेस में, राइट। तो इसमें हमने किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, अगर पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है और LSCS उसका हो रहा है, ठीक है, या राइट, या वेजाइनल डिलीवरी में भी देते हैं स्पाइनल ब्लॉक, ठीक है, तो जो ड्रग की डोज देनी है वो आपने नॉर्मल पेशेंट से कम देनी है। एंड हाई स्पाइनल ब्लॉक में फॉलो एक्सेसिव स्प्रेड ऑफ ड्रग, ठीक है, अगर हाई स्पाइनल ब्लॉक दे रहे हो तो जो ड्रग देनी है वो स्प्रेडेड एरिया में आप देंगे, राइट। देन एपिड्यूरल स्पेस में अगर देंगे आप तो अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरल पंचर, माइग्रेशन ऑफ एपिड्यूरल कैथेटर इनटू द इंट्राथिकल स्पेस, ये सब चीज़ें हमने जो है वो प्रिवेंट करनी है, राइट। देन नेक्स्ट आ जाता है हाइपोटेंशन में बी एग्रावेटेड बाय इनकरेक्ट पोजिशनिंग, एब्सेंस ऑफ लेटरल ट्रिट, एओर्टा कैवल कंप्रेशन, ठीक है, एओर्टो केवल कंप्रेशन होता है इस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑपरेट, ठीक है, जब हम LSCS करते हैं तो एओर्टो केवल कंप्रेशन जो है होने के चांसेस होते हैं, तो उस कंप्रेशन को कम करने के लिए हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन ही देंगे पर लेटरल टिल्ट देते हैं। लेटरल टिल्ट में क्या करते हैं, हम पेशेंट के बटक्स के नीचे एक वेज रखते हैं, ठीक है, सो टू प्रिवेंट दिस हाइपोटेंशन और एओर्टो केवल कंप्रेशन। देन बेसिक मैनेजमेंट न्यूरोजेनिक शॉक की वही आती है आपकी ABC आएगा, ठीक है, स्पेशल एस्पेक्ट्स आएंगे आपके जैसे कि एडवांस लाइफ सपोर्ट विद एक्सटर्नल कार्डियक मसाज एंड डिफिब्रिलेशन, अगर पेशेंट ने न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो डेवलप कर लिया है तो एक्सटर्नल कार्डियक मसाज देनी है और डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि जो कन्वेंशनल थेरेपीज़ हैं दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन ट्रीटिंग और मैनेजिंग न्यूरोजेनिक शॉक।
देन मेंटेन ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए अभी बताया आपको वेसोप्रेसर देंगे आप और आइनोट्रोपिक एजेंट्स देंगे, ठीक है। देन LSCS देंगे करेंगे टू सैल्वेज द बेबी। देन यूज ऑफ सिडेटिव्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अवेयरनेस वंस इनिशियल रिसेसिटेशन इज अचीव्ड, ठीक है। तो सिडेटिव्स हम यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट जो है वो हम रिसेसिटेट करने में उसको सक्सेसफुल हो गए हैं, राइट। देन आ गया एंडोटॉक्सिक शॉक। एंडोटॉक्सिक शॉक में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्टिक शॉक और बैक्टीरियमिक शॉक, ठीक है। सो इट कैन बी ड्यू टू सेप्टिक अबॉर्शन, इट कैन बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कैन बी ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। देन मैनिपुलेशन मतलब वर्जन, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब फोर्सेप्स डिलीवरी कर रहे हैं जैसे कि, या वेंटोस कर रहे हैं। देन ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू की वजह से हो सकता है, प्यूपेरियल सेप्सिस की वजह से हो सकता है, एंड सीवियर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कैन बी अ कॉज फॉर एंडोटॉक्सिक शॉक, राइट। देन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसके हमने डिस्कस करे हैं क्लास में पहले, है ना, डिटेल में। तो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। इकोलाई है, प्रोटियस है, सीडोमोनास है, बैक्टीरियोइड्स है, ठीक है। ये सभी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, सो दे कैन बी द कॉजेटिव फैक्टर फॉर एंडोटॉक्सिक शॉक, राइट। देन बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये एक तरह का एक्सोटोसिन प्रोड्यूस करता है एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज एंडोटॉक्सिक शॉक। देन मैनेजमेंट इसकी आती है। इसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज़ लाइक वी आर गोइंग टू कैरी इट इन 3 स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन। तो हमने इसके ऊपर ध्यान देना है, सर्कुलेटरी फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए और ऑक्सीजनेशन को रिस्टोर करने के लिए। सो रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड लॉस, ठीक है। तो जैसे जब भी ब्लड लॉस होता है तो हम कौन से सोल्यूशन देते हैं, क्रिस्टलॉइड्स या और कोलाइड। कोलॉइड्स में डेक्स्ट्रन देते हैं 40 और 70, और क्रिस्टलॉइड्स में हम RL, NS और D5 दे सकते हैं, ठीक है। देन CVP मॉनिटरिंग करनी है हमने, वो एसेंशियल है इसके अंदर, उससे हमें पता चलेगा कि वेदर देयर इज सर्कुलेटरी ओवरलोड और नॉट, ठीक है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे हम, ठीक है। देन बीटा एडर्नर्जिक स्टिमुलेंट्स देंगे जैसे कि हम दूसरे शॉक्स को मैनेज करने के लिए दे रहे थे, और ऑक्सीजन भी देंगे इफ रेस्पिरेटरी फंक्शन इज इम्पेयर्ड। अमाइनोफाइलिन देंगे इफ देयर इज ब्रोंकोस्पाज्म। तो अभी तक आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैनेजमेंट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक हैं बट ऑलमोस्ट सिमिलर है इनकी मैनेजमेंट, ठीक है। सो देन है जर्नल मैनेजमेंट। सेकंड क्या है, सर्कुलेटरी मैनेजमेंट के बाद जर्नल मैनेजमेंट, राइट। सो इसमें आपका आ जाएगा सर्कुलेटरी, इट इंक्लूड्स इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ शॉक एंड सर्कुलेटरी मैनेजमेंट विच रिक्वायर्स रैपिड ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम को एक्सपेंशन करना है इसके अंदर हमने, एंड टू करेक्ट द हाइपोवोलेमिक स्टेज, ठीक है। देन इम्प्रूवमेंट इन द मैटरनल हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फीटल वायबिलिटी। जितनी जल्दी मदर की जो हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी हम लेकर आएंगे उतने ही चांसेस हैं फीटस के सर्वाइव करने के, राइट। देन LSCS के लिए हम ऑप्ट करेंगे, एंड इफ फीटल कॉम्पोनेंट इज सोर्स ऑफ सेप्सिस देन डिलीवरी बिकम्स द एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। लेकिन अगर इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो फीटस से हुआ है, मतलब कि फीटस की वजह से होता है, सपोज जैसे कि फीटस के अंदर डेथ हो गई है, तो डेथ हो गई है तो पता नहीं चला, दैट इज़ अ साइलेंट मिसकैरेज, तो उसको डिलीवर करवाना ही जल्दी सही रहता है क्योंकि उससे मदर की कंडीशन जो है वो और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाएगी। सो दैट कम्स अंडर द एक्टिव मैनेजमेंट इफ़ द सोर्स ऑफ सेप्सिस इज फीटल। देन क्विकली ट्रांसफर टू द टर्चरी मेडिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पास सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होंगी। देन डायरेक्ट आर्टीरियल एंड CVP मॉनिटरिंग करेंगे। टेक सैम्पल्स फॉर कल्चर, ठीक है। कल्चर क्यों करना है हमने, टू फाइंड आउट विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ कॉज द सेप्सिस। देन इंट्रावीनस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम देंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वेदर द बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम देंगे कल्चर रिपोर्ट आने के बाद। दैट रिमूवल ऑफ इन्फेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और रिमूवल ऑफ इन्फेक्टिव टिश्यू हम कैसे रिमूव करेंगे, इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है, इधर बाय DNC और कॉल्पोटमी और लेपरोटमी, एंड इफ रिक्वायर्ड सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी। तो इन मेथड्स के साथ जो है वो हम इन्फेक्टिव टिश्यूज़ को रिमूव कर देंगे यूट्राइन कैविटी से। देन इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि हमें पता है इन्फेक्शन को हम इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं, थ्रू एंटीबायोटिक थेरेपी, और स्वाब्स लेंगे कल्चर के लिए, ठीक है, एंड उसकी सेंसिटिविटी पहले चेक करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी विल पुट द पेशेंट ऑन एंटीबायोटिक थेरेपी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया।
देन कम्स सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर एंटीटॉक्सिक शॉक, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपका आता है इट इज़ इंडिकेटेड व्हेन देयर इज रिटेन्ड इन्फेक्टिव टिश्यू एज इन सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होता है, कुछ अंदर प्रोडक्ट्स जो है कंसेप्शन के वो रह जाते हैं, तो उस केस में हमने उसको रिमूव करना है, ठीक है। और एंटीबायोटिक थेरेपी हमने साथ में लगानी है ताकि पेशेंट को और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, राइट। देन सक्शन इवैक्यूएशन के थ्रू हम एम्प्टी कर सकते हैं। देन वी कैन गो फॉर डिजिटल इवैक्यूएशन, मैनुअल इवैक्यूएशन जिसे बोलते हैं। देन हिस्टेरेक्टमी कैन ऑल्सो बी डन इन एडवांस्ड इन्फेक्शन विद अ गैंग्रीनियस और ट्रॉमेटाइज्ड यूट्रस, ठीक है। अगर यूट्रस के अंदर गैंग्रीन फॉर्म हो चुका है, जैसे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई, ठीक है, या फिर यूट्रस ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है, उसको लाइक रिमूव करना ही हमारे पास एंड ऑप्शन बचता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हिस्टेरेक्टमी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक शॉक। इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के शॉक्स हमने जो पढ़े हैं वो हैं, बट वो शॉक्स आपने मेडिकल सर्जिकल में भी पढ़े हैं। अब डिफरेंस सिर्फ उसमें ये आता है कि उन शॉक्स की जो टाइप, वो जो शॉक्स आपने पढ़े हैं पहले मेडिकल सर्जिकल में, उसमें ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, दैट वी हैव स्टडीड अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और उनकी मैनेजमेंट कैसे कैसे की जाती है दैट वी हैव कवर्ड अंडर दिस particular presentation. So if still you are having any doubts, you can ask me via calls and messages. Thank you so much for your attention. Thank you.